अगर ये allowed होता कि teacher Gautam I can go on 2 months summer vacation, I would have loved it, man. Now, since many people are watching this, we all want to know कि there are a lot of people in the same line as yours. So obviously there are a lot of conflicts. But then at the end of the day, teaching is all about respect, right? So whom do you feel in the coaching industry is one teacher in Guwahati that you really respect a lot? Yeah, too limiting to one teacher won't be right. So I'll just list down the process of what I think. So like I'll just go back to my school days. I'll not keep restricted to the coaching industry only. So school mein in Sarla Birla, like I did my primary schooling from there only, like from class 5 to 12. So like I respect a lot to Kavita ma'am because I remember she used to teach us English and she inspired me a lot as a person. Then Julie ma'am was one of my biggest inspiration from where my life turned around. So I always tell her that because of one of your lectures to me, my life turned around. Our school principal was Anubha ma'am. Till date on every teacher's day, I do visit her. Like every single teacher's day, I don't think, if I'm in Guwahati, I've never missed it. Like, so yeah, she has been one of my biggest inspiration. I've studied a lot from Vinita ma'am. Now she's also in RGS. I studied for around 5 years from her. So that's quite a long time. Like from class 5 to 10, I was with her. I was studying English and socials from her. And in the coaching industry specifically, whom do I respect a lot? I'll put it like that there are 2-3 great teachers who do great. Like I've learned a lot from Pankaj sir because he was the one who started this whole thing and has been the longest into the industry. In the maths sector, I won't be mentioning any of my institute teachers because obviously I respect them. But Anis sir is really great a maths teacher. So if someone asks me whom should I take maths, I always suggest that either it's Varsha ma'am or Anisha because Varsha is my wife and she's my part of my institute, and Anisha because I respect a lot. So I'll never mention only my institute's name. These two teachers are really doing great, and I really look up to them. How do they work about it? And one teacher till today I always consider to be as like my second mom. That is Moshu ma'am. So she's in Samford right now, and she like मेरे को ना शुरू में ना जब भी क्रिटिसिज्म होते थे ना आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ, क्यों इतने डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं. तो आई शुड गो बैक एंड लाइक टॉक टू लॉट टू मोशू मैम कि यार ऐसा हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, आई एम वेरी स्कैर्ड. So she used to be always available for me. And one teacher, although we don't talk a lot because we're into direct competition, but yeah, I studied a lot from Renuka ma'am also. So a lot of my economics goes to her because she was the one who taught me microeconomics and macroeconomics. So I respect. So yeah, these are the few teachers who have been shaping up my teaching career. So but if you ask me to pick up one of them, I'm sorry, I can't. But yeah, all of them have been a great figure. So I pay all my respect to them. Knowingly, unknowingly in competition, sometimes you just make your moves which might hurt them, but no intention to do that ever. Right. I guess the whole purpose of this video of who is Gautam Bhaiya beyond classroom shows here. I mean, in classroom he's this hard exterior who will never show what he is inside. But then today we saw Gautam Agarwala mentioning that he is scared. He does get scared of things. He has love in his heart also. Then again, so we can't just, I guess, the perception about you that there's no emotion in you or you're just that dirty guy who would do anything to earn money, I guess that's wrong, because we see rarest combinations of both Saraswati and Lakshmi in one guy. And when you said that you go to that person when you feel low or you are doing a mistake, then I must say that when I do my mistakes, and even now when I do not study with him, he still helps me out. And that speaks volumes about you. Next, we do need to talk about, okay, you're a great teacher, you're very disciplined with, okay, sorry, not that disciplined with your work, but then you really need to be honest with us. How many times did you actually fall sick? How many times was there a really family emergency that you skipped classes and you cancelled classes? So yeah, I'll be very honest about it. So yeah, like it's like why am I so hesitant towards teaching in the month of May, June is because mentally when you're into the work for 12 months, it takes a toll on a person. You're mentally exhausted also.
So sometimes falling sick does not define your physically sick. Sometimes it's the mental being also, because we use brain a lot. Every time when you're doing a sum, every time you're making an example, this is a lot. So now in this generation we talk a lot about falling sick by terms of fever, but there have been days when I'm actually feeling low, not because I'm physically ill. It's because I don't feel like teaching, man. I just feel like I just lie down into my room. I don't get even out of the room also. I just use my blanket and just watch Netflix all the while, or watch a series or something like that. ये मैंने किया है. पर मतलब genuinely I do have the tendency when the weather changes a lot, I do fall sick. मतलब जैसे अभी भी I have cold and cough. तो ना मेरे लिए June month is really hard because of weather changing. मतलब June में we have seen extremes. We have seen 51 degree feeling like 40 degree. We have seen extreme rainy season and आज वापस से गर्मी है. तो ना because this weather changes I have a lot of issues with my genuine issues. पर यार आई एम कमिटेड, मतलब मैं ऑनेस्ट हूँ इस चीज़ से कि देयर हैव बीन ओकेजन्स, या जब मेरे को मैच देखना है तो मैंने बोला, पर मैंने ना उस टाइम ये नहीं बोला है कि आई एम एक्चुअली सिक. पर आप सिक हो इसका ये मतलब नहीं कि आप घर से भी नहीं जा सकते. बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, मैंने मैसेज किया मैं सिक हूँ तो भाई ये बंदा बाहर भी नहीं जाएगा. अरे यार ऐसा क्यों होता है? आप बीमार होते तो भी आप जाते हो ना कहीं बाहर. आपने भी तो बर्थडे पार्टीज अटेंड की है बीमार होके भी. तो यार मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ. तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने ना कभी ऑन पर्पज, और स्पेशली अगर आप मेरे को देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आई डोंट थिंक कि मैं क्लासेस स्किप भी करता हूँ. मैं अगर मिस कर रहा हूँ ओनली आई एम आउट ऑफ गुवाहाटी, या मेरे को ट्रिप चाहिए बिकॉज माई माइंड हैज बीन नॉट फंक्शनिंग. तो आई डू दिस लाइक एवरी 3 months आई मेक अ ट्रिप, एंड वंस आई कम बैक फ्रॉम द ट्रिप आई टीच. लाइक अभी मेरे को पता है मैं जून में जा रहा हूँ, अभी ट्रिप पे कल जा रहा हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए, एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस. एंड व्हेन आई कम बैक मेरा शेड्यूल ये है कि एवरी मॉर्निंग आई एम गोना एंटर द इंस्टीट्यूट एट 7, आई एम गोना कम बैक होम एट 11 एवरी सिंगल डे. अब उस टाइम पे आई नो कि व्हाट इज माई कमिटमेंट लेवल. अब मेरे को बुखार होगा, मेरे को लूज मोशन होगा, मैं डायपर पहन लूंगा, लेकिन आई नॉट मिस अ क्लास बिकॉज वो मेरे लिए प्रायोरिटी है. मतलब लास्ट टाइम ऐसा भी था कि मैंने हॉस्पिटलाइज जेन्युइनली. नेक्स्ट दिन स्कूल का मंडे को एग्जाम था, मैं सैटरडे रात को हॉस्पिटलाइज था, मैं संडे को जाके पढ़ाया हूँ. तो आई डोंट चीट विथ माई प्रोफेशन. बट या देखो मैं भी यंग हूँ, तो ऐसा भी हुआ है 1-2 बार कि मेरे को IPL मैच देखना है, या आई एम अ बिग क्रिकेट फैन. तो अब यार इंडिया पाकिस्तान है, हु वांट्स टू रीच इंडिया पाकिस्तान. मतलब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है ना आप क्लास नहीं ले रहे हो इंडिया, मैं स्टूडेंट को जज कर लेता हूँ, भाई तू आया कहाँ से? आज इंडिया पाकिस्तान है भाई. तू अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस कर रहा है, तू अपना गर्लफ्रेंड का सगा नहीं हो सकता. देखो लड़की ना मिले बद्दुआ है मेरा, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन या मतलब कुछ चीजें तो यू ऑल्सो इंजॉय ना. मतलब मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, तो यार मैं अभी भी बच्चा ही हूँ अपने बाय हार्ट. तो आई एम स्टिल वेरी किडिश. मतलब अगर ना मेरे को कोई क्लास में जोक्स हो जाए ना, मेरे को मजा आ जाता है यार. मतलब जब बच्चे वो इंटरैक्ट करते हैं ना, मेरा एनर्जी डबल हो जाता है, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है. आई हेट अ क्लास समवन हु इज साइलेंट. तो मेरे को ऐसा क्लास चाहिए जो बात करे कंटिन्यूअस, मजा आता है. मतलब नौटंकी करते रहे क्लास के अंदर, क्योंकि मैं खुद वो हूँ, मैं इतना ड्रामा करता हूँ. तो या आई पर्सनली बिलीव कि यार ऐसा मैंने चीटिंग नहीं किया कभी भी, पर ऐसा हुआ है कि मन नहीं है यार, ठीक है. ऐसा भी हुआ है कि 1-2 बार, स्पेशली पता है कब मन नहीं होता मेरा, मई जून. दिस इज द ओनली टाइम व्हेन आई फील सो लेथार्जिक, आई डोंट वांट टू टीच मैन. लाइक अगर ये अलाउड होता कि टीचर गौतम आई कैन गो ऑन 2 months समर वेकेशन, I would have loved it, man. क्योंकि मेरे को पता है what happens once July start comes in. Because स्कूल का रोल पता है कौन से महीने तक है? अक्टूबर तक या नवंबर मिड तक. हमारा रोल तो उसके बाद शुरू होता है. हमें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, देयर आर डेज जब मैंने ना अपना शक्ल अपने मिरर पे नहीं देखा है. ऐसे भी दिन हुए हैं. मतलब दिस इज सिंस यू आर रिवीलिंग सो मच. जब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग था तो 3 दिन था बोर्ड्स के गैप पे. मैं 3 दिन नहाया नहीं था, बिकॉज मेरे को लगा नहाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यार. मतलब मैं उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, मतलब हगना जरूरी है, एंड देन आई जस्ट वेंट टू माय क्लास एंड आई टॉट. सो ऐसा नहीं यार, मतलब मैं कमिटेड हूँ. देयर हैव बीन डेज आई हैव नॉट इवन ईटन माय लंच, आई हैव नॉट ड्रैंक वाटर फॉर अ डे. बट मेरे को कोई बोलेगा ना मई जून बहुत पढ़ा दो बिकॉज स्कूल में यूनिट टेस्ट है, हमने कद द क्रैप ब्रो, एज इफ तेरे को BST में फुल आ रहा है भाई. तो अभी हम सुन के आए स्कोर वो लोगों का, BST में आ रहा 4 out of 30, अकाउंट से ज्यादा आ गया. फिर लोग मेरे को बोलते हैं मैंने सिलेबस नहीं कर रहा था. आई एम डूइंग वेल यार. सो या ऑन अ लाइटर नोट, या आई हैव डन फ्यू टाइम्स, बट नो यार. मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो, आप जब इतना लंबा पढ़ाओगे ना तो इट्स नेचुरल कि इट विल टेक अ टोल, समटाइम्स मेंटली, फिजिकली. सो एवरीवन नोज हु हैज बीन लर्निंग मी फ्रॉम अ लॉट कि ये बंदा ना मई जून नहीं पढ़ा रहा. उसके बाद इसके अंदर कोई आत्मा घुसता है, और अक्टूबर में तो दुर्गा माता इसके साथ ही आता है. मतलब आता है और विसर्जन नहीं होता, नेक्स्ट ईयर होता है सीधा. तो ऐसा है मतलब. लेकिन दिस इज हाउ आई बिलीव इन. Okay, that's great to hear. So many students. That means you have so many doubts to clear with, right? Now,
You cannot lie about this because I have legit screenshots that proof. Why do you leave students on scene? Why do you leave each and every student on scene? Tell us that. और ऐसे तो फनी पार्ट है, मैं याद है मेरे वाइफ ने मेरे को ना पूरा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और लास्ट में लिखा PS I love you, मतलब काफी रोमांटिक था, ठीक है ना, एंड आई डिड नॉट रिप्लाई टू दैट आल्सो. सो मतलब आई हैव नॉट बीन, या आई डू, ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू बी डाइवर्सी विद माय, मेरा पेट वेट के साथ मेरे को नहीं लगता नया मिलेगा मेरे को, लेकिन या ऑन अ लाइटर नोट आई हेट, मतलब मेरे को ना टेक्स्ट करना पसंद नहीं है. मतलब इट्स मतलब मैं ना मैसेज पढ़ लूंगा, देख लूंगा, रिप्लाई नहीं करना मेरे को. मैं अगर अपने घर पे हूं, मैं लेटा हुआ हूं, लेजिट मैं वेला हूं, मैं रिप्लाई कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा. फॉर मी लाइक टेक्सिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अगर मेरे को ना कोई ऑप्शन दे, फोन रखना बंद कर दो, पर फोन रखो खाली इंस्टाग्राम नेटफ्लिक्स और देखने के लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी. तो आई हेट टेक्सिंग. पर मैं हमेशा सबको बोलता हूँ यार, इफ इट्स रियली अर्जेंट, अब रात को 9 बजे कॉल करो. If I don't pick up, I'm definitely gonna give a call back unless and until I miss it out. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, आपके पास नंबर सेव नहीं है, जैसे आप 11 में होता है, स्पेशली बच्चे आए हैं, नंबर सेव नहीं है, तो 10 मिस कॉल है अननोन नंबर से, यार मतलब आप भूल ही जाते हैं आप किसको किसको कॉल किया. पर अगर नंबर सेव्ड है तो आई डू कॉल बैक, ऐसा नहीं है. आई मैसेज इज नॉट माई थिंग. सो आई टेक दिस ऑन टू मी कि येस आई लीव स्क्रीनशॉट पे, मतलब सीन जोन पे मैसेजेस, यू माइट हैव द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. पर आई हेट टेक्सिंग मैन. मतलब ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने मेरे को एक एक पेज का मैसेज लिख के दिया, एक्सप्रेसिंग व्हाट दे फील अबाउट माई क्लासेस. आई हैव टेकन अ स्क्रीन, हार्ट किया मैंने, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट करके अपने स्टेटस पे डालने का मेहनत किया है, पर रिप्लाई नहीं करना यार मेरे को. मतलब या आई एम वेरी बैड एट इट. मतलब पीपल रियली हेट मी फॉर दिस. नॉट हेटेड बट ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड टू इट. बट या, This comes as an irony because this guy will never reply to your texts. But when it comes to writing long messages for motivating you every three months, he's the guy to go. And then tell us. I mean, we've decoded a lot about your character and everything. So, have you ever felt, मतलब, you have always said us कि ना मार्केट में लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं, बहुत नेगेटिव बातें भी करते हैं, सब मेरा बुराई कर रहा होता है, राइट? सो you've always thought of that, but we as students have never felt that much. But then tell us that, have you ever chosen money over ethics, or have you ever gone off track when you could have chosen the ethical path, or you believe that through all your journey has been very ethical, and although you have chosen unconventional methods, but then again it has always been ethical. So whenever we talk about you, there's this second thought that ठीक है अच्छा पढ़ाता है but ethically सही नहीं है. So do you feel that with yourself, or what's your justification or explanation to any of those comments? ना मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था ना, मेरा ये मानना है कि ना हम लोग जो टीचर्स को देखते हैं वो गुरु वाले रूप पे देखते हैं कि भाई गुरु द्रोणाचार्य, गुरु 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 इज द ग्रेटेस्ट. पर हम जिस जेनजी जनरेशन में जी रहे हैं ना, हम जो टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर नॉट दैट आइडियल गुरु मटेरियल. भाई जब महाभारत में ऑनेस्टली स्पीकिंग द गुरु वॉज फॉर द स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है मैं एथिकल खाली एक ही जगह पे, जहाँ मेरे बच्चे आते हैं जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं ना, मेरे को नहीं पता कि मैं उनके साथ क्या हूँ, बिकॉज मेरे को अपने स्टूडेंट्स को डिफेंड करना है. आई चोजन मनी ओवर एथिक्स यार, अनइंटेंशनली माइट बी, नॉट बाय हार्ट. सो आई एम नॉट मनी माइंडेड. मतलब यार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे स्टाफ्स मनी कलेक्ट कर रहे होते हैं, मैं शायद उनसे आज तक हिसाब भी नहीं लिया हूँ चीज़ों का. सो मेरे को ये, मैं अपने मैं जो भी कमाता हूँ, आई जस्ट कम बैक, जो भी मेरे को फीस मिलता है, आई जस्ट कम होम एंड गिव इट टू माई डैड. तो ही गिव्स अ मेंटेनेंस. मतलब अगर आपको लगता है मैं बहुत मनी माइंडेड हूँ, तो सरप्राइजिंगली इफ यू एवर आस्क मी मनी ना, यू विल नेवर गेट मनी विद मी. लाइक आई जस्ट हैव अ 500 नोट. तो मेजॉरिटी केसेस में ना मैं नहीं सोचता हूँ, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग. ऐसे भी बहुत बार हुए हैं जब मेरे को स्टूडेंट्स ने फीस भी नहीं दिया है, और शायद मेरे को याद भी नहीं होगा. अब तो थैंक्स, आई हैव एन एडमिन टीम, आई हैव अ मार्केटिंग टीम जो सब करता है. पर अगर मैं अपना ओल्ड वाला बात करूँ तो आई यूज्ड टू हैव अ फोन का नोट्स, आई यूज्ड टू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड राइट अ फीस. मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं कभी जब तक हो सके, मतलब मेरे हाथ पे हो, तो आई विल प्रेफर एथिक्स ओवर मनी. रिगार्डिंग मी बीइंग टॉक दैट आई एम अनएथिकल, मेरे को लगता है बिकॉज आई एम नॉट द आइडियल गुरु मटेरियल जो टीचर्स दिखाते हैं. आई एम सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिखाते हैं, मैं नहीं दिखा सकता. मैं जो अपने रूम के बाहर हूँ मैं वही अंदर हूँ. अगर मैं, बहुत लोग मेरे को बोलता है कि
लाइक अ वेरी कैजुअल अबाउट फ्यू यूसेज ऑफ वर्ड्स, बीप बीप बीप, तो भाई मैं बाहर भी यूज करता हूँ, तो मेरे को ना दोगलापन नहीं हो रहा भाई. तो अश्नील ग्रोवर के भाषा में मेरे अंदर दोगलापन नहीं है. मैं अनफिल्टर्ड हूँ व्हेन आई एम टीचिंग. अगर मैं अपने कैरेक्टर पे नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर क्या का. हाउ विल माई स्टूडेंट्स फील कि हाँ भाई मैं एक जेन्युइन बंदे से पढ़ रहा हूँ, ये. तो मेरा ये मानना है कि आई डोंट नो वेदर आई एम एथिकल और अनएथिकल, ये बहुत परसेप्शन के ऊपर है, पर आई लेट इट माई स्टूडेंट्स टू डिसाइड कि मैं एथिकल हूं या नहीं, जिनसे मैं फीस ले रहा हूं. अगर उनको लगता है यार आपने जितना फीस ले सकता तो आपने पढ़ा दिया है, तो मैं एथिकल हूं. और एथिक्स कैसे डिफाइन होता है आज के टाइम में. एंड बाकी वी स्टे इन अ, सॉरी टू से, वी स्टे इन अ कंट्री वेयर एवरीथिंग इज नॉट एथिकल, आई बिलीव. We all know the reality. So I don't know whether I'm ethical or not, but I just want to sleep with one thought for the rest of my life. कि कोई बच्चा मेरे को फीस दिया है ना, जब तक हो सके वो मेरा बुराई ना करे यार. कि मतलब देखो बुराई बीच में सब करते हैं, पर वो एंड में ये बोल के ना जाए यार इट वॉज नॉट वर्थ पेइंग दिस गाय. जिस दिन वो होता है ना यार ठीक है इसको पैसे दिए, नॉलेज मिला मेरे को, मार्क्स तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता. आई फील स्लीप लाइक अ स्मॉल बेबी इररेस्पेक्टिव व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी. आई जस्ट डोंट वांट टू स्लीप विद दैट वन थॉट कि किसी स्टूडेंट को लगा यार उसने फीस तो दे दिया पर ये बंदा ने कुछ नहीं पढ़ाया. देखो होगा कभी ना कभी, होता भी, आज भी होता होगा, पर इट्स नॉट इंटेंशनल एवर. मतलब आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जब तक हो सकूँ उस चीज़ को जस्टिस देखो. हर बैच में होते हैं ऐसे लोग, पर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट जितना मैं कर सकता हूँ. बट यार कुछ 1-2% तो होगा यार ऐसा तो. ट्रू. आई मीन व्हेन यू सेड कि बीच में लोग बोलते हैं योर खुद का स्टूडेंट्स, राइट? सो आई वोंट लाई, मतलब हम खुद भी सोचता था, मतलब वी हैव नेवर डिकोडेड योर कैरेक्टर. मतलब वन मोमेंट यू आर दिस, वन मोमेंट यू दैट, एनी टाइम ये यार ये इतना पढ़ाने दे रहे एकदम, मतलब ऐसा होता है. देयर हैव बीन डेज कि वन डे वी लाइक क्या पढ़ा यार मजा आ गया, और नेक्स्ट डे इतना होमवर्क दे दिया तो ये अच्छा ही नहीं रहता, लेना ही नहीं चाहिए था अकाउंट्स, सिर्फ अकाउंट्स करे. सो देयर हैव बीन डेज, यू नो, and this message is for the entire student community, because I won't lie to you, I'll say it on your face that I have never accepted you, matlab until recently ki the greatest man, but then matlab there have always been faults, we finding faults, matlab हम खुद भी सोचता था ये ऐसा है वैसा है, but then बोर्ड का रिजल्ट्स के बाद, बोर्ड का रिजल्ट्स भी नहीं, the moment you give the boards का पेपर खत्म, that moment you realize all of it was worth it. And I guess this is not only coming from me, you must have be hearing it from many students who have taught. Again, so we've talked a lot about education, we've by far decoded a lot about your character. I mean, I hope when this video goes off, people try to understand the person behind that podium. And you know, you're aging. So do you feel a disconnect between your students or anything? Has age ever act as a barrier, you know, between you and your students, or are you still a chilled half pant cap Gautam Bhaiya? यार मतलब I was talking to my wife yesterday and Vashabam से basically मैं सेलिंग करके यार मैं जब इस ब्रेक से वापस आऊँगा ना, मैं पहला चीज़ पता है क्या करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट के साथ फिर से बात करूँगा. मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा पढ़ा के. आई वॉन्ट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को फील होने लगे कि मैं अप्रोचेबल ही नहीं हूँ. तो मैं ना इस ब्रेक के बाद जब मैं आऊँ, या सो वंस आई कम बैक फ्रॉम दिस ब्रेक, मेरा पहला एफर्ट ये होगा कि मैं पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली, पर ये एफर्ट होगा कि हर एक स्टूडेंट को ये लगे कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया ट्रिप के अंदर की बंदा जब आया है ही इज अ चेंज मैन. तो मतलब मैं ना जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में था ना, आई यूज्ड टू वेयर अ शॉर्ट एंड अ टी-शर्ट, यूज्ड टू गो बैक, और वेयरिंग अ ट्रैक पैंट एंड यूज्ड टू जस्ट गो टू ट्यूशन. आई एम गोना बी दैट. या मेरे को नहीं पहनना फॉर्मल्स यार, लेट पीपल जज, पर मेरे को ऐसे ही जाना है यार. मेरे को सुबह 7 बजे जाना है, अपना चिल मोड पे, चप्पल टी-शर्ट का कॉलर ऊपर, मस्त रिलैक्स मोड, मैं हंसते हंसते पढ़ा रहा हूँ बिना कोई स्ट्रेस के. मेरे को वो जीना है वापस से. तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर यस्टरडे यार आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू जस्ट गो बैक टू दिस. दिस इज लाइक कि पीपल को ना जज यू यार, मतलब अब इतने लोग जानते हैं, मतलब एवरीवन फॉलोज यू ऑन सोशल मीडिया, मतलब आई लाइक यार लेट देम जज. कौन सा मैं जज नहीं हो रहा हूँ, अभी भी होता हूँ. तो अब मैं ना बैक टू हो जाऊंगा. दैट्स Judge more after this video. yeah, I'm okay with that. मतलब it's okay, it's the part of it. Till the time you know what you're doing is fine, it's okay, it doesn't matter to me. मतलब लोग का काम है, कहेंगे यार, नहीं कहेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा. मैं भी कहता हूँ gossip is the biggest form of thing in our life.
So yeah, it's okay. Like so, yeah. मतलब obviously I feel disconnected, but I know I personally believe कि मेरे अंदर अभी भी वो aura है that कि मैं within a month I'll just connect with everyone. मेरे को लगता है कि मेरे लिए जुलाई वाला मंथ ना गेम चेंजर होगा. I can anticipate this now. मतलब when I'm into that headspace now कि जब मैं जुलाई आऊँगा ना मैं फोड़ दूंगा. शायद मेरे बच्चे भी है ना जितने, मैं 20 और नया एडमिशन लूंगा, मैं फोड़ दूंगा आके मार्केट को. I'm that positive about this now. So I am into that zone, mental space. मैं mental space वाला आदमी हूँ. So मैं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है personally, basically. So we have always seen you laughing and cracking jokes with us. So when was the last time you cried? मैं रोया कब? पता नहीं यार, I don't remember really. But I think yeah, like मतलब we are just relocating to a new space. And जब मैं वो जगह देखा तो it was like 2 floors. like मेरा ड्रीम है like एक पूरा बिल्डिंग हो यार अपना. मतलब जैसे साइंस वाले बच्चे जाते हैं ना, हमारा कॉमर्स का भी एक तो होना चाहिए यार. मतलब हम इम्पोर्टेंट है यार, हम कॉमर्स वाले धंधा चलाते हैं. तो मतलब वो साइंस वाले भी तो लास्ट में अकाउंट्स ही कर रहे होते हैं ना जो हम सिखा रहे होते हैं. सो वो एक टू बिल्डिंग बन जाए ना, तो जब मैं सीन दैट 2 फ्लोर एक कॉर्पोरेट फीलिंग आता है यार. 4th फ्लोर 5th फ्लोर फुल ग्लास व्यू है मस्त एकदम. या अपना इंस्टीट्यूट होगा. And that's my 7th number institute that I'm shifting to. So yeah, like and मेरे घर वाले परेशान है मेरे से क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक नया इंस्टीट्यूट लिया, अब मैं वापस उसको छोड़ रहा हूँ. तो बहुत लेजिट परेशान है. But yeah, I think that was a slight emotional, not much. And 7 is a lucky number for you. I hope so. Next, what is your worst fear? मतलब इस चीज़ से बहुत डरता है. पहला क्या डरता है और दूसरा अगर डरता है तो इस चीज़ से बहुत डरता है. यार वर्स्ट फियर मतलब डरता तो मैं बहुत हूँ बहुत चीज़ों से. मेरे को हाइड्रोफोबिक है वाटर तो मतलब आई लाइक हाइट इज ओके, आई एम प्रीटी कूल विद इट. तो हाइड्रोफोबिक हो तो या फियर इज देयर. अगर मैं अपने पर्सनल सेंस में फियर बोलूँ तो मेरे को ना बहुत डर लगता है इस चीज़ से कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं. वो ख़राब तो नहीं सोचते ना, तो ये है. ऑल्दो मेरा शक्ल देख के किसी को नहीं लगेगा, या मैं जब अपने इंस्टीट्यूट में घूम रहा हूँ ना कि भाई ये बंदा को थोड़ी फर्क पड़ता है कोई चीज़ से. पर यार आई डू फियर, लाइक दिस इज माई डीपेस्ट फियर इनसाइड मी. Okay, so we've had a lot of conversations about who you are and how you are with the students. Now tell us this, what is that favorite restaurant in Guwahati for you? फेवरेट रेस्टोरेंट्स, आई ईट अ लॉट ऑफ टाको बेल. रात को 12 बजे आई ऑर्डर दिस, लाइक मैं बहुत सस्ता वाला खाता हूँ. तो लाइक पोटैटो बुरीटो रोल 59 रुपीज लेजिट. दैट्स लाइक माई गो टू थिंग टू ईट एट नाइट, क्योंकि दिन में मैं खाता ही नहीं हूँ. मेरे को लगता है मैं पूरे दिन पढ़ा रहा होता हूँ. तो लाइक मैं नॉर्मल गुड मील इज रात को यार. और बाकी खाने में या लाइक आई थिंक आई ईट अ लॉट फ्रॉम टाको बेल. सो आई रियली लव टाको बेल. जो कोई नहीं खाता, सबसे बेस्ट बात है क्या है कि मैं वाइफ नहीं खाता है, तो रात को जब मैं ऑर्डर करता हूँ मैं अकेले खा सकता हूँ. और सस्ता है यार, मतलब ठीक है लेजिट. Okay, so tell us, what is there in Suits that you love so much about it? सूट्स तो ये एक चीज है. मैंने ना सूट्स 3 बार देखा है, ठीक है. एंड लाइक आई रियली एडमायर हार्वी स्पेक्टर. लाइक ही इज द गाय फॉर मी, ठीक है. तो मतलब क्या होता है ना कि अननोइंगली सबकॉन्शियसली यू टेक सो मच फ्रॉम अ कैरेक्टर इन योर लाइफ. तो लाइक मेरे को लगता है यार ऑब्वियसली रियल लाइफ इज नॉट सो इजी टू क्लोज अ डील ये वो, लेकिन द वे ही हैज हिज पर्सनैलिटी, भाई चार्म है उसका. तो ना अभी जैसे लाइक कुशल इज नाउ जूनियर टू मी एंड वो पार्टनर है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यू आर लाइक माय माइक रॉस ब्रो. यू डोंट टीच दिस, हाउ कैन यू नॉट टीच दिस, लेट यू वॉच माय लेक्चर, यू टेक अ लेसन फ्रॉम मी. तो वर्षा ऑलवेज लाफ्स. हम लोग दोनों को साथ में देखकर बोलता है तो तुमको ये चाहिए था अपना जिंदगी में. तो आई डू कनेक्ट विद इट. एंड मेरे को उसके जो वन लाइनर्स होते हैं ना, you like it here, I like it here. So yeah, like I love that. So yeah, but interestingly, a lot of people might not know it. If I like those who watch Suits, my favorite character is not Harvey Specter. My favorite character is Louis Litt. He is lit, bro. Uska mudding is good. So yeah. Okay, so but we still would love to believe that it is still Harvey Specter as a favorite character. Next, tell us your favorite movie that you it does not matter how much time you watch it, but you still watch it again. Favorite movie, I think Ye Jawani Hai Diwani will be top of my list. I really love that because that's like you just go to the banquet, you don't have to apply your brain and you enjoy it. There's no melodrama sort of thing. Neither ये लड़ रहा है वो लड़ रहा है. And
लक्ष्य बाय ऋतिक रोशन, जो लक्ष्य मूवी है, वो मेरे को ना बहुत मोटिवेट करता है. तो ना ऐसा होता है कि मैं 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूँ यार, 5वां दिन फ्राइडे यार छोड़ देते हैं यार, नहीं पढ़ाएंगे, या ऑन अ संडे ना बहुत सब घर पे हैं और मैं पूरे दिन पढ़ाने वाला हूँ, ये सोच के ना अंदर का रूह कांप जाता है. तो देयर आर सैटरडे नाइट्स व्हेन आई डोंट पार्टी, आई वांट लक्ष्य. तो मैंने लक्ष्य का मूवी शायद अपनी लाइफ में शायद 50 टाइम्स से ऊपर देखा है. तो लाइक आई फील डिमोटिवेटेड, आई वॉच इट, आई लाइक यार क्या मूवी है यार, मतलब मजा आ जाता है. एंड आई फील यस पम्प्ड अप, कल ये करवा दूंगा जाके. तो आई वाज दैट लॉट. Okay. So we come down to last two questions. Both of these are would you rather, all right? Now, would you rather die or would you rather go on a diet? आई वुड गो ऑन अ डाइट. आई कैन, ऐसा नहीं है, मैंने किया है कोविड लॉकडाउन में. अभी मैंने ना 10 days का भी डाइट किया. मेरे को ट्रिप आ रहा था, मैंने बोला कि यार चक डाइट. ट्रिप पे तो डाइट नहीं हो रहा, 10 दिन का diet या एनकरेजिंग, पर ऑनेस्टली लाइक ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, यू सी माई फिजिक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, आई विल बी चेंज्ड. Okay. And Change can be in any direction. So it's always not this. It can be this. okay, so now here's the last question that would sum up the entire interview. Would you rather, here is one situation where you can never teach but be the richest guy, or here is one situation where you can always teach but you'll never be a rich guy. So what would you choose? या मतलब मेरे ना बहुत ईजी है. आई डोंट थिंक, वेरी ऑनेस्टली, मतलब बहुत लोग बोल रहे होंगे यार ये बस खाली इंटरव्यू के लिए बोल रहा है. आई स्वेयर टू माई लाइफ आई विल ऑलवेज सिलेक्ट टीचिंग, बिकॉज मेरा पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं वो हूँ ना कि अगर मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ ना, तो मैं पूरे दिन इंस्टीट्यूट में घूम लेता हूँ. मतलब ऐसे भी तो स्टूडेंट देखते हैं भाई ये पढ़ा नहीं रहा पर ये घूम क्यों रहा है, इंस्टीट्यूट में तो छुट्टी लिया था, ठीक है. कल भी ऐसा था कि मैं पूरे टाइम इंस्टीट्यूट में था, पूरे दिन मैंने इंस्टीट्यूट में निकाले और मैं कल पढ़ा कम रहा था. तो आई थिंक आई लिव बाय टीचिंग, आई विल डाई बाय टीचिंग. मतलब if someone asks me what's your one wish, I will wish that when I die I am teaching. I want to die when I'm teaching. So if God is listening to this and मेरे को लगता है भगवान मेरा बहुत सुनता है, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर मैं 2 साल बाद भी मरूं, मैं कल भी मरूं, मैं 15 साल बाद भी मरूं, मैं 50 साल, मेरे से हरामी बच्चा 50 साल जीता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं मरूं तो मैं चाहूंगा कि यार मैं अकाउंट्स का बैलेंस शीट मैच करते करते मरूं. दैट्स व्हाट आई एम. तो उसके लिए शायद मेरे को लोग इको टीचर मानते ही नहीं है क्या शायद. तो बट या आई वुड लव टू टैली अ बैलेंस शीट इवन एट द टाइम ऑफ माय डेथ.